Hello students, in our first lecture of trigonometry, introduction to trigonometry, we have seen some basic ratios which are very important, basic ratios of trigonometry. Now on the basis of those ratios, we'll see some more examples about trigonometry which are on the basis of that basic ratios. So the first question is, given that tan A is equal to 4 by 3, find the other trigonometric ratios of angle A. ठीक है, हम लोगों को क्वेश्चन दिया है. फ्रॉम दैट क्वेश्चन वी हैव टू ड्रॉ ए फिगर. एंगल ए बोला है, मीन्स एंगल ए शुड बी एक्यूट एंगल. तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ. सपोज दिस एंगल ए, B and C. Okay, and what is given to us? Tan A is equal to 4 by 3. So tan का रेशियो क्या है? Tan is equal to, see what is given? Given tan A is equal to 4 by 3. Okay, so what is the ratio of tan theta? Tan theta is equal to opposite side upon adjacent side. Okay, so tan A means this angle, उसकी opposite side क्या है? This one. This one is the opposite side. So we'll take BC as 4K and adjacent side AB. So we'll take AB as 3K. Okay, so the ratio of tan A is therefore tan A is equal to 4K upon 3K, where K is a positive integer. Why we have taken K over here? Because here we are considering this as a ratio, not the value. तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. सपोज k is 2, तो 4 to the 8, 3 to the 6 means it would be 8 and ये 8 हो सकती है, 6 हो सकती है, 12 होगी तो ये 9 होगी. ऐसे उसकी वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, which is depend on the value of k. बट उसका रेशियो हम लोगों को दिया है यहाँ पे 4/3, इसलिए हम लोगों ने ये k की वैल्यू यहाँ पे k कंसीडर किया है. ओके, सो नाउ वी आर गेटिंग the two sides BC and AB. So in triangle ABC by Pythagoras theorem, see angle B is equal to 90 degree. ये 90 डिग्री है, तो by Pythagoras theorem क्या आएगा? Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. तो हाइपोटेनस क्या है? AC square is equal to base क्या है? AB square plus perpendicular is BC square. Okay, therefore AC square is equal to, what is the value of AB? It is 3K square plus 4K square. So AC square is equal to, यहाँ पे 3K square की वैल्यू आएगी 9K square plus 16K square. Therefore AC square is equal to 9K square plus 16K square. It is 25K square. Taking square root. अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो AC स्क्वायर इज AC, 25 का स्क्वायर रूट इज 5, K का स्क्वायर रूट इज K. सो वैल्यू ऑफ AC इज, मतलब हाइपोटेनस जो है वो क्या आता है? 5K. Now you have got all three sides. Okay, so हम लोग को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढने हैं. tan का तो पता है हम लोग को, तो sin का देखते हैं. sin A इज इक्वल टू, sin A क्या रहता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस.
तो साइन ए क्या आएगा 4k अपॉन 5k, के कैंसल विच इज इक्वल टू 4/5. ओके एंड cos A is equal to adjacent side, that is 3k upon hypotenuse 5k, which is equal to 3/5. ओके, तीन रेशियो इंपॉर्टेंट जो है वो तो मिल गए. नाउ cot A is equal to 1 upon tan A. तो tan A कितना है 4/3, तो 1 upon tan A मतलब cot A कितना आएगा, रिवर्स हो जाएगा, that is 3/4. ओके देन sec A is equal to 1 upon cos A, मतलब कितना होगा वो 5/3. and the last is cosec A is equal to 1 upon sin A. तो sin A कितना है 4/5, तो उसका इनवर्स कितना हो जाएगा 5/4. Here we get all 6 ratios. See, मतलब tan A का तो given to you. ओके यहाँ पे हम लोगों ने sin A निकाला, cos A निकाला, cot A निकाला, tan से, cos से sec निकाला एंड sin से cosec निकाला. तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने यहाँ पे निकाले. So note down this. We'll see one more question. Okay, now we'll see second one more question. Consider triangle ACB right angled at C. Question को देख के एक लाइन अंडरस्टैंड करके we have to draw a figure for that question. Okay. Consider triangle ACB right angled at C. Right angled at C, in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units, and angle ABC is theta. ठीक है. And what is to find, determine, हम लोगों को ये दो इक्वेशंस दिए हैं, दो इक्वेशंस के वैल्यूज ढूंढने हैं, cos square theta plus sin square theta and cos square theta minus sin square theta. So let's first draw the diagram triangle ABC which is right angled at C. ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. A B C, राइट एंगल C पे आया, इन विच AB 29 यूनिट्स है एंड BC 21 यूनिट्स है. एंगल ABC ये थीटा है. ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट cos square theta and sin square theta and cos square theta minus sin square theta की वैल्यू फाइंड करने को बोला है. तो आप लोगों को कौन से दो रेशियोज चाहिए उसमें, एक cos theta की वैल्यू चाहिए और एक sin theta की वैल्यू चाहिए. तो cos theta क्या रहता है, सॉरी sin theta क्या रहता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो अपोजिट साइड पहले हम लोगों को उसमें फाइंड करनी है. तो लेट हम लोग स्टार्ट करते हैं. कोई भी इक्वेशन अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, बेसिकली वो मैथ्स के कोई भी सम सॉल्व करते हैं तो उसको गिवन टू प्रूव, अगर थ्योरम है तो टू प्रूव, क्वेश्चन है तो टू फाइंड और सॉल्यूशन एंड आंसर, ऐसे एटलीस्ट 4 स्टेप में वो आना चाहिए. सो लेट्स राइट डाउन फर्स्ट गिवन. द डायग्राम नहीं दिया है तो डायग्राम इज आल्सो पार्ट ऑफ योर आंसर. ओके, डायग्राम को भी मार्क रहेगा. तो गिवन क्या दिया है, इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, BC इज इक्वल टू 21 यूनिट्स, angle C is equal to 90 degree and angle ABC is equal to theta. Okay, what is to find, एक तो बोला है cos square theta plus sin square theta और दूसरा बोला है cos square theta minus sin square theta. Okay, now we'll start with solution.
तो सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अगर हम लोग को ये दो आइडेंटिटीज या दो इक्वेशंस की वैल्यू चाहिए तो हम लोग को उसके लिए cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोगों को अपोजिट साइड भी चाहिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ACB बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, क्या आएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। रीअरेंज करके लिखा उसको हम लोगों ने। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 29 स्क्वायर माइनस BC कितना है 21 स्क्वायर। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी भी हम लोग यूज कर सकते हैं इफ यू वांट। अगर तुम लोगों को स्क्वायर पता है यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर ये 29 स्क्वायर, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ जस्ट, अगर तुम लोगों को स्क्वायर पता नहीं है, आइडेंटिटी याद है तो यू कैन यूज आइडेंटिटी ऑल्सो। तो वो क्या आएगा 29 प्लस 21, 29 माइनस 21, और फिर जो आंसर आएगा इसका क्या आंसर आएगा 50, ओके, और इसका क्या आंसर आएगा इनटू 8, इट इज 400। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज करके थी, तुम लोग कर सकते हो अगर तुम लोगों को स्क्वायर पता नहीं। तो 29 का स्क्वायर कितना आता है 841। मैं अभी यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूँ, ये मेथड से जाना है तो यू कैन गो बाय दैट मेथड आल्सो। 21 का स्क्वायर क्या है 441, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 400। आया 400 से, ओके। therefore AC is equal to कितना आएगा AC स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, AC स्क्वायर 400 किसका स्क्वायर है 20, तो AC की वैल्यू आई हमारी 20। ठीक है, so this is how we can find the values। अभी हम लोगों को क्या करना है उसमें साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड क्या है 20, मैं लिखती हूँ यहाँ पे अपोजिट साइड AC अपॉन हाइपोटेनस AB। तो साइन थीटा क्या आएगा 20/29। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड मतलब बेस BC अपॉन हाइपोटेनस AB। सो cos थीटा की वैल्यू क्या आई 21/29। ओके, ये वैल्यूज हम लोग को मिले। अभी हम लोग को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो फर्स्ट हम लोग को क्या सॉल्व करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो cos स्क्वायर थीटा कितना है 21/29 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 20/29 ब्रैकेट स्क्वायर। 21 square is 441। Okay, before that it would be like 21 square plus 20 square, बेसिस आर सेम तो उसको एक ही बार लेंगे हम लोग 29 स्क्वायर। करेक्ट, बेसिस सेम है उसको लिखा है डिनोमिनेटर में। सो 21 स्क्वायर कितना आता है 441 प्लस 400 अपॉन 29 का स्क्वायर कितना आया 841। दिस इज इक्वल टू इसका सम कितना आएगा 841 अपॉन 841 एंड द फाइनल आंसर इज 1। देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आंसर क्या आया 1। एक आंसर मिला हम लोग को। सिमिलरली अभी हम लोग को क्या करना है
cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। यू नोट डाउन दिस। तो हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा।